Good afternoon, one and all. Today is 22nd January 2022, and we'll be talking about pointers. What is a pointer? A pointer is a variable that holds an address of another variable. So pointer is a variable that can hold the address of another variable. This address is the location of another object in the memory. जो एक वेरिएबल पॉइंटर जो है, पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल जैसा है, बट ये वेरिएबल क्या होल्ड करता है? इट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है. सो दिस एड्रेस लोकेशन of another object in the memory. So pointer as an address indicates where to find an object. So pointer indicates where the object resides. Not all pointers actually contain an address. Example, the null pointer, and the value of null pointer is 0. So it's not necessary that every there is something called as null pointer also, which does not contain the address. That we will talk. We will not be talking about these two in this scene. So by simply saying the definition of a pointer is that it's a variable that holds the address of another variable. Now pointer can have three kinds of contents in it. The address of an object, which can be called as dereferenced. दूसरा नाम क्या है इसका? Dereferenced. जो pointer है, operator का नाम है dereferenced operator. So the address of an object which can be dereferenced, a null pointer, invalid content which does not point to an object. So a pointer can have three kinds of contents. मतलब पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस भी हो सकता है, नल पॉइंटर भी हो सकता है, या फिर इनवैलिड कंटेंट्स भी हो सकता है that does not point to the object. So if p does not hold a valid value, it can crash the program. So three values can be possible in case of a pointer. Now the syntax for creating a pointer. Pointer किस तरह से डिक्लेयर करना है? अगर हमें इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो हमको ये स्टार, this denotes that it is a pointer. कैसे लिखना है? डेटा टाइप स्टार p सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन भी आएगा. ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, and this I should be small I. So int star p semicolon. So we say that p is a integer pointer. ये star indicates, this indicates it's a pointer variable. What this indicates? Star indicates that it's a variable which is of type pointer. Star is a variable which is of type pointer. So star p, int star p. So p is a variable which is a pointer variable of type integer. हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल int p डिक्लेयर करते हैं, उसकी जगह अगर हमने स्टार लगा दिया तो ये पॉइंटर वेरिएबल कहलाएगा. Now it is possible in some environments to have multiple pointer values with different representations that point to same location in the memory. So here this is the memory location, and it is possible that these different pointers are pointing towards same memory location, different pointers holding same address. ऐसा भी possible है. मतलब ये चार डिफरेंट पॉइंटर्स हैं, वो चारों पॉइंटर्स एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं. इट इज पॉसिबल इन सम एनवायरनमेंट्स टू हैव मल्टीपल पॉइंटर्स वैल्यूज विद द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दैट पॉइंट टू द सेम लोकेशन इन द मेमोरी. एक ही लोकेशन जो है मेमोरी को, उसको ये चार अलग अलग पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं. अब एक बात ये ध्यान रखनी है, जिस मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं उसका जो डेटा टाइप है वेरिएबल का, वही डेटा टाइप ये पॉइंटर का होना चाहिए, तभी वो वैलिड पॉइंटर कहलाएगा. तो जो डेटा टाइप मेमोरी का को पॉइंट कर रहा है ये पॉइंटर, इसका डेटा टाइप और इस मेमोरी का जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए. बट मेक श्योर इफ द मेमोरी इज डिलीटेड यूजिंग द डिलीट और द ओरिजिनल वेरिएबल गोज आउट ऑफ द स्कोप. सो दिस we say that this is the memory, and this memory consists of these four different integer pointers pointing towards the same memory location. How do we declare the pointer? Data type star name. कैसे लिखना है पॉइंटर को? डिक्लेरेशन का सिंटेक्स कैसा है? डेटा टाइप, ये पॉइंटर वेरिएबल, स्टार लगाना है, ये स्टार लगाना है मतलब ये पॉइंटर बन गया. ये नेम, तो ये वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल के आगे स्टार लगा दिया, दैट इज इट इज अ पॉइंटर. आफ्टर दैट सेमीकोलन. डेटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? इंट, कैर, फ्लोट और डबल, देन लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, ये सब डिफरेंट डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जो हमने बात की थी
वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर हो सकता है, यूनियन हो सकता है, क्लास हो सकता है। तो ये डेटा टाइप और इसके बाद ये स्टार और फिर वेरिएबल नेम सेमीकोलन। सो दिस इज हाउ डू वी डिक्लेयर अ pointer. So star is a unary operator also called as an indirection operator. This star denotes it's an unary operator or it is also called as an indirection operator. This is called as a pointer variable. This star is also called as an indirection operator. Star को क्या बोलते हैं? Indirection operator. इसका नाम क्या है? Indirection operator. Data type is the type of the object which the pointer is pointing. जिस वेरिएबल को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप पॉइंटर का भी होना चाहिए. एनी टाइप ऑफ पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनीवेयर इन द मेमोरी. एनी टाइप ऑफ पॉइंटर, any pointer can point to anywhere in the memory. Star is used to declare a pointer and also to dereference a pointer. तो star किसके लिए यूज करते हैं? Star is used to डिक्लेयर अ पॉइंटर, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए और उसको रेफरेंस करने के लिए, डी रेफरेंस करने के लिए भी पॉइंटर को इस्तेमाल किया जाता है. नाउ व्हेन यू राइट इन स्टार, द कंपाइलर अज्यूम्स दैट एनी एड्रेस दैट होल्ड्स पॉइंट्स टू एन इंटीजर टाइप. अगर हमने इन स्टार सेमीकोलन लिखा, इट मींस दैट वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन इंटीजर pointer. It's an integer pointer pointing towards the integer location. So m is equal to m% of count. It means that memory address of count variable is stored into m. So m is equal to m% of count. It means that memory address of count variable is stored into m. And m% is unary operator that returns the memory address. So this is the address operator and it returns the एड्रेस लोकेशन. दिस इज ऑल्सो यूनिटी ऑपरेटर एंड दिस इज ऑल्सो यूनिटी ऑपरेटर. तो m जो है, m इज माय वेरिएबल. यहाँ पर ये इसको इस तरह से डिक्लेयर किया है हमने. दिस इज लाइक दिस m एंड देन फॉलोड बाय सेमीकोलन. मतलब ये हमने ऐसा लिखा है इन, इसके पहले लिखते इन स्टार m and semicolon. Okay, so int star m मतलब इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया. m is an integer pointer, so m is equal to m% of count. Count is another variable which is integer type normal variable. So m is the pointer which points towards the count variable. तो इसको अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो कैसा होगा ये? This is my m variable which is an integer pointer and this is my count variable. This count variable contains some data, say for example 2, and it is stored at some memory location 2000. So this m will point towards the address location that is 2000 of count. So it contains 2000 as an address location inside the variable n. So m is a integer pointer. M integer pointer declare किया. m is equal to m% of count. Address of count. Count का address क्या है? 2000. तो यहाँ 2000 स्टोर कर रहा है. इसका मतलब m is pointing towards the address location of count. Count के address location के ऊपर ये point कर रहा है. So it means memory address of count variable is stored in m. And this m% is a unary operator and returns the memory address. That is, this is called as m% orally and is returning the address. इसको हम क्या बोलते हैं? Address operator. इसको pointer operator. इसको बोलते हैं. This is also called as indirection operator. ये star को हम क्या बोलते हैं? Indirection operator. और इसको बोलते हैं address operator. So it means m receives the address of count. This is called as a pointer object, and this pointer object points towards the address location of another variable that is count. Now suppose count uses memory address 2000 to store its value 100. So m is equal to m% of count means m has 2000. देखो ये count के अंदर 100 वैल्यू है, ये मेमोरी एड्रेस 2000 है
तो क्या होगा, this m which is a pointer variable can point towards this 2000 address location. So q is equal to star of m. It returns the value at the address m. Value at the address m is 100. Star of m, when you are using star of m in the program, तो अगर हम स्टार ऑफ एम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, इट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ एम. मतलब जब हम लोग इसको स्टार्टिंग में करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसे करते हैं, यहाँ से एड्रेस रिपीट कर दिया, और जब हम इसको एक्सेस करेंगे स्टार ऑफ एम लिखा, तो इट ऑलवेज रेफर्स टू द कंटेंट वेयर द पॉइंटर इज पॉइंटिंग. So q will return 100 value. So content where m is pointing, m is pointing at address location 2000, so you will get 100 as the value. So q will return the 100. Q will store the content of m. So q receives the value of at the address location m. So address of operator, this ampersand denotes the address of operator. It is used to reference the memory address of a variable. When we declare a variable, three things happen. Computer memory is set aside for variable. Variable name is linked to that location in memory. Value of variable is placed into the memory that was set aside. So there are three things that happens when a variable is declared. Computer memory allocate हो जाती है, वेरिएबल जो है मेमोरी एड्रेस के साथ में लिंक हो जाता है, एंड वेरिएबल इज प्लेस्ड इनटू द मेमोरी एड्रेस. नाउ सी हियर ptr. ptr is an integer pointer. This I is small. ptr is an integer pointer declaring variable ptr which holds the value of at the address of integer type. Now int val equal to 1. What is val? Val is a normal variable. What is ptr? ptr is a pointer variable. Now assigning int the literal value of 1, we say that ptr is now pointing towards the address location of val. तो ptr किसको पॉइंट कर रहा है? ptr is now pointing towards this val by writing m% of val. स्टार लिखना है, वेरिएबल पॉइंटर डिक्लेयर करना है, और पॉइंटर जो है दूसरे एड्रेस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो एड्रेस ऑपरेटर लिखकर वेरिएबल का नाम लिखना है. ये दो स्टेटमेंट याद रखनी है कि इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप एंड पॉइंटर का नाम स्टार के साथ में, उसके बाद में पॉइंटर विल कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों को याद रखना है. dereference and get value at the address stored in the ptr. So int dereference is equal to star of ptr. So what is this? deref is a variable which is integer type, which contains the content of ptr. So what will be the content of ptr? Content of ptr will be the address location where the address is pointing. So जिस address location पे पॉइंट कर रहा है ptr, उसकी जो वैल्यू है, कंटेंट है, वो स्टार ptr से दिखेगा. सो इफ यू प्रिंट this deref variable, you will get the output as 1 because this ptr is pointing towards val, और ptr किसको पॉइंट कर रहा है? val को, और val के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है? 1. तो जब हमने यहाँ पे स्टार ptr लिखा, तो कंटेंट वेयर द पॉइंटर इज पॉइंटिंग, दैट विल गिव यू वैल्यू 1. Content where the pointer is pointing towards val variable. Okay, again I will show you diagrammatically. This means that this is the memory location, this is another memory location. This memory location is called by a variable called as val. ये वेरिएबल का नाम क्या है? val. ये सपोज 2000 मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे स्टोर है val. इसके अंदर वैल्यू क्या है? 1. इसके अंदर वैल्यू 1 है. तो मैंने इस वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया? int val equal to, val is a variable that is equal to 1. Okay, so val is 1 which is stored at memory address location 2000. Now star ptr is a pointer variable. So how I have to declare it? I have to say int star ptr semicolon. So it's an integer pointer. ये semicolon लगा दिया. ये this is the declaration of integer pointer. Now this pointer point towards the variable val. So ptr equal to
m% of, this is m% of value. Okay. So this is my val variable which contains one value, and this is my PTR variable which is star PTR. So I declare it as int star PTR semicolon, and I declare this as int val equal to 1 semicolon. Okay, now this will contain the address location of another variable. This address location is 2000. Okay, so int star PTR is an integer pointer. It points towards the address location of another variable. So how do I write that statement? That statement is written as PTR equal to m% of value. ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं पॉइंटर से रिलेटेड. क्या क्या है? हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया int स्टार ptr, वेरिएबल डिक्लेयर किया int val, इसमें वैल्यू असाइन की 1, and now ptr is pointing towards the address location of val. So ptr is pointing towards the address location of val. So it is this statement. ठीक है, अगर मैं printf val करूंगी तो 1 आंसर आएगा, अगर मैं printf स्टार ptr करूंगी तो भी 1 आंसर आएगा, क्योंकि ptr is pointing towards the address location of another variable. Now generic pointer, there is a pointer called as void pointer. Void star pointer is called as a generic pointer, and it cannot convert the void star pointer to another pointer. Void pointer can be assigned to any other type of the pointer, and void star is used to specify a pointer whose base type is unknown. मतलब अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करना है तो मुझे इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा. अगर कैरेक्टर वेरिएबल को पॉइंट करना है तो कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा. अगर फ्लोट वेरिएबल को पॉइंट करवाना है तो फ्लोट पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा. पर अगर हमको ये नहीं पता है कि ये पॉइंटर जो है किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसका डेटा टाइप नहीं पता, या फिर ये चेंज हो रहा है, उस केस में हम एक वॉइड पॉइंटर भी क्रिएट कर सकते हैं. इंट की जगह क्या लिखना है? वॉइड पॉइंटर. सो वॉइड पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप. वॉइड पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप. तो अगर मैंने यहाँ पर int की जगह void लिखा तो ये फिर भी वर्क करेगा. So void is a pointer which can point towards any data type variable. Now arithmetic pointers, there are two arithmetic operations which we can perform with the pointer. मतलब addition subtraction कर सकते हैं pointer के साथ में. So to understand this concept, P1 एक हमने pointer create किया है with the integer pointer with the value 2000 address location. ठीक है, अगर P1 एक पॉइंटर है इंटीजर पॉइंटर और उसके अंदर 2000 एड्रेस लोकेशन है that it is pointing, तो we can perform P1 plus plus. It means P1 is equal to P1 plus 1. पॉइंटर को एक से बढ़ाया, एक से बढ़ाया मतलब नेक्स्ट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. इसका खुद का कितना बाइट्स है? 2 बाइट्स. अगर इंटीजर ऑक्यूपाई कर रहा है तो नेक्स्ट इसमें 2 आगे बढ़ा देगा, तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस लोकेशन जो है उसके ऊपर ये पॉइंट करेगा. So P1 will contain 2002 address location, not 2001, क्योंकि integer occupies 2 bytes. और कुछ compilers में integer occupies 4 bytes, जो हम अभी compiler यूज कर रहे हैं, तो instead of 2 bytes I'll say that integer occupies 4 bytes. So यहाँ पर 2004 address location आ जाता है. ठीक है, 2000 से एड्रेस लोकेशन से प्लस 4 बाइट इंक्रीज करेगा तो 2004 एड्रेस लोकेशन हो जाएगा. दिस इज प्लस प्लस मींस इंक्रीमेंट टू द नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन. और एक एड्रेस लोकेशन में अगर इंटीजर डेटा स्टोर हो रहा है तो उसको 4 बाइट लगता है, तो नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन कौन सा हो जाएगा? इट विल बी 2004.
क्योंकि 4 बाइट प्लस 4 बाइट प्लस 4 बाइट, तो 4 बाइट में एक इंटीजर डेटा, नेक्स्ट 4 बाइट में आगे बढ़ेंगे तो उसमें नेक्स्ट इंटीजर डेटा. सो इट इज लाइक दिस. जैसे सपोज हमारे पास में ये 2000 एड्रेस लोकेशन है और अगर हमने इसमें इंटीजर डेटा स्टोर किया से फॉर एग्जांपल 2 और नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन 3, नेक्स्ट डेटा, तो इसका एड्रेस लोकेशन क्या होगा 2004. इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स. इसका एड्रेस लोकेशन कितना होगा 2008. और इसका एड्रेस लोकेशन क्या होगा 2000. ओके, 2000, 2004, 2008 एंड 2012. 4 बाइट से आगे बढ़ रहा है क्योंकि इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट. तो हमने यहाँ पॉइंटर किस टाइप से क्रिएट किया है, पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर क्रिएट किया. अगर यही इसकी जगह इंटीजर की जगह कैरेक्टर होता तो एक एक बाइट ही ऑक्यूपाई करता. तो ये एड्रेस लोकेशन 2000 होता, 2001, 2002, 2003. कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट, इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो P1 प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज स्टार्टिंग में पॉइंटर जो है, सपोज P1 जो पॉइंटर है, ये मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको हटाती हूँ. P1 इज द पॉइंटर विच पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस एड्रेस लोकेशन. सो P1 प्लस प्लस किया तो ये इस एड्रेस लोकेशन को पॉइंट करेगा. P1 प्लस प्लस कर दिया, P1 प्लस प्लस, सो इट विल मूव बाय 1. और फिर से आगे बढ़ाया तो इट विल बिकम नेक्स्ट. और फिर से प्लस प्लस किया तो ये नेक्स्ट को पॉइंट करेगा. इसी टाइप से अगर हमने P1 माइनस माइनस किया तो ये बैक पे आएगा, ये इसको पीछे ले जाएगा. So each time P1 is incremented, it will point to the next address location. So P1 minus minus पीछे जाएगा, P1 plus plus will increase by next location. P1 is equal to P1 plus 12, so it will point to the 12th element. 12वें एलिमेंट के ऊपर ये पॉइंट करेगा. ठीक है. कुछ रूल्स हैं पॉइंटर के साथ में कि पॉइंटर में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते. पॉइंटर के साथ में प्लस माइनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. पॉइंटर कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 पॉइंटर्स. एक पॉइंटर 2 पॉइंटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. पॉइंटर कैन नॉट अप्लाई टू द बिटवाइज ऑपरेटर्स. यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट टाइप फ्लोट और डबल टू और फ्रॉम पॉइंटर्स. सो फ्लोट वैल्यू और डबल वैल्यू इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. फ्लोट और डबल फ्रॉम द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. Then what is the use of the pointers? Pointers are used in situations when passing actual values in the difficult or desired situation. It returns more than one value from a function. अगर एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस केस में हम पॉइंटर यूज करते हैं. डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन के लिए पॉइंटर इस्तेमाल किया जाता है. They increase the execution speed and pointers are more efficient in handling the data types. Pointers reduces the length and complexity of a program. So the use of a pointer array to character string results in the saving of data. To allocate the memory and access it, dynamic memory allocation can be used. So implementation of this pointer is linked list, then graph, tree, stack, ये सब हम implement कर सकते हैं. अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं एड्रेस लोकेशन का. से a program to get the address of a function. तो हमने क्या लिखा, %u will give you the address location. तो अगर मैं ये फंक्शन लिखा मैंने सिंपली, वेलकम टू हिप्स, this function name is show and this function is called here. So this can be printed, the address of this show function can be printed as %u. Okay, now let's see how do we create a pointer in the memory. I'll just remove these two statements. Okay,
hash include stdio.h main integer star ptr a. Here integer a is a normal variable, a is a normal variable, integer variable, and ptr is a pointer variable. तो स्टार लगाया तो इंटीजर पॉइंटर बन गया. ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है. हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक नॉर्मल वेरिएबल एक और एक पॉइंटर वेरिएबल ptr. दोनों इंटीजर है. This a is a normal variable, a is a normal variable, integer variable, and this ptr is a pointer variable. दोनों को हमने डिक्लेयर किया है. दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर एंड आल्सो अ नॉर्मल वेरिएबल. दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर के. ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल है. ओके, स्टार लगाया है इसलिए ये पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है. इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इसका दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्शन ऑपरेटर. पॉइंटर वेरिएबल और इनडायरेक्शन ऑपरेटर. ऑपरेटर का नाम है इनडायरेक्शन. ना एंटर डेटा, हमने स्कैनफ किया, एक की वैल्यू को रीड किया यूजर से. परसेंट डी इंटीजर है, ये इंटीजर है तो परसेंट डी इंटीजर डेटा रीड किया. अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, दिस पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच कैन पॉइंट टुवर्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. सो पीटीआर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज ए. सो एड्रेस ऑपरेटर लिखा है यहाँ पे, ये एड्रेस ऑपरेटर है, उसको पॉइंट कर रहा है ये पीटीआर. सो पीटीआर इज इंटीजर पॉइंटर व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स द एड्रेस लोकेशन ऑफ इंटीजर वेरिएबल ए. दोनों इंटीजर इंटीजर है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. integer pointer can point towards the integer variable. So pointer ptr is pointing towards the address location of a. मतलब इस a के दो नाम है, एक घर का नाम, एक बाहर का नाम. तो एक नाम क्या हो गया? a नाम से भी ये कॉल हो सकता है और पॉइंटर जो है ptr, इससे भी इसको कॉल किया जा सकता है. पर दिस इज अ पॉइंटर स्टार which can hold the address location of a. ptr क्या कर रहा है? एड्रेस लोकेशन a का स्टोर कर रहा है. Now address of a is percent u. परसेंट u अगर मैं लिख रही हूँ तो a का एड्रेस प्रिंट करेगा. ठीक है. देन एड्रेस ऑफ ptr, ptr का अगर एड्रेस लिख रहे हैं तो यहाँ पर u लिखा, u is used to print the address location of ptr. Then the content of a is percent d and star ptr is star ptr. तो यहाँ a के कंटेंट क्या है? a के कंटेंट जो हमने यूजर से डेटा रीड किया वो, और स्टार ptr के कंटेंट्स क्या होंगे? जो a के कंटेंट्स रहेंगे. जो a के कंटेंट्स रहेंगे वही स्टार ptr के कंटेंट्स रहेंगे. सो प्रोग्राम को कंपाइल किया. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया. प्रोग्राम में डेटा एंटर किया. यहाँ पे परसेंट डी भी लिखते हैं. मैं इसको फिर से कंपाइल करती हूँ, आपको एक और बार दिखाती हूँ. So I enter data 5. Address of A is 2293432 and the address of PTR is 2293432 and the contents of A is 5 and star PTR is also 5. मतलब क्या हुआ? हमारा जो हमने A की वैल्यू एंटर की वो 5 एंटर की, A की वैल्यू 5 प्रिंट हुई और PTR star PTR which is the integer pointer which points towards this variable that is a, it also holds 5 values. स्टार ptr लिखने से क्या कंटेंट क्या दिखा रहा है? 5 दिखा रहा है. मतलब स्टार ptr कंटेंट वेयर द पॉइंटर इज पॉइंटिंग. स्टार ptr को क्या बोलते हैं? कंटेंट वेयर द पॉइंटर इज पॉइंटिंग. पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एड्रेस लोकेशन ऑफ a. उसके अंदर कंटेंट क्या है? 5. तो स्टार ptr के अंदर भी क्या आया? 5. मतलब a से अगर मैं ए को रेफर करती हूँ तो 5 आ रहा है और स्टार पीटीआर को भी जब मैं रेफर कर रही हूँ तो 5 आ रहा है. सो हमने डेटा एंटर किया, एंटर डेटा 5 है, डेटा एंटर किया. एड्रेस लोकेशन ए का
दिखा रहा है, ये एड्रेस लोकेशन पीटीआर का दिखा रहा है ये। तो ए का एड्रेस लोकेशन जो है वही पीटीआर का एड्रेस लोकेशन है। क्यों है? क्योंकि पॉइंटर पीटीआर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एड्रेस लोकेशन ऑफ ए। पीटीआर का एड्रेस लोकेशन, पीटीआर के अंदर का कंटेंट जिस एड्रेस लोकेशन पे ये पॉइंट कर रहा है ये, और ए का एड्रेस लोकेशन, देखो यहाँ पर ए का एड्रेस लोकेशन हमने प्रिंट किया है, एड्रेस ऑफ ए दैट इज एम्परसेंट ऑफ ए हमने प्रिंट किया है, तो ये एड्रेस लोकेशन दिखा रहा है ए का। और पीटीआर का भी एड्रेस लोकेशन दिखा रहा है। पीटीआर का एड्रेस लोकेशन मतलब पीटीआर का कंटेंट दिखा रहा है। पीटीआर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? सेम 229 एड्रेस लोकेशन दिखा रहा है। किसका? ए का ही एड्रेस लोकेशन, दोनों सेम है। ठीक है, मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो पीटीआर की वैल्यू, स्टार पीटीआर की वैल्यू होगी। अगर ए की वैल्यू बदलेगी तो स्टार पीटीआर की वैल्यू भी बदलेगी। सो कंटेंट ऑफ ए इज 5 एंड द स्टार पीटीआर इज आल्सो 5। ए का भी कंटेंट 5 है और स्टार पीटीआर के भी कंटेंट्स 5 है। ओके, यहाँ पर पीटीआर इज परसेंट डी लिख दिया मैंने, तो पीटीआर के अंदर कंटेंट्स क्या है? एड्रेस लोकेशन। और स्टार पीटीआर लिखने से क्या मतलब हुआ? स्टार पीटीआर लिखने से दिस स्टार पीटीआर मींस कंटेंट वेयर द पॉइंटर इज पॉइंटिंग। तो पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, तो ए के अंदर भी 5 वैल्यू प्रिंट कर रहा है यहाँ पे 5, और स्टार पीटीआर के अंदर भी यहाँ पर 5 प्रिंट कर रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू को, इफ आई राइट ए इज इक्वल टू 20, ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, ए को प्रिंट करती हूँ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? ए को प्रिंट किया तो वैल्यू क्या आएगी? 20, और पीटीआर के थ्रू वैल्यू को प्रिंट किया तो भी वैल्यू क्या आएगी? 20। तो दोनों केसेस में वैल्यू 20 आएगी। अगर हम ए को मॉडिफाई कर रहे हैं तो स्टार पीटीआर से ए को जो एड्रेस लोकेशन पॉइंट कर रहा है वो सेम मेमोरी एड्रेस है, मतलब ए के अंदर 20 कंटेंट हुआ तो ये जो मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर डेटा अपडेट हो गया, तो पॉइंटर जब उसको पॉइंट करेगा तो उसको 20 दिखाई देगा, क्योंकि एक ही लोकेशन को दो लोग देख रहे हैं, एक ए देख रहा है, पीटीआर देख रहा है, तो ए ने उसके अंदर का डेटा 20 कर दिया तो पीटीआर को भी 20 दिखाई देगा। तो ये स्टेटमेंट में जब हम प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू तो यहाँ 20 दिखाई देगी, और यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर भी 20 दिखाई देगी। अगर हमने ए की वैल्यू को 2 कर दिया तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, और स्टार पीटीआर के थ्रू भी ए की वैल्यू को 2 प्रिंट हुई। ओके, सिमिलरली अगर मैंने इसकी जगह स्टार पीटीआर इक्वल टू 2 लिखा तो भी ए की वैल्यू भी 2 दिखाई देगी और स्टार पीटीआर की भी वैल्यू 2 दिखाई देगी। दैट मीन्स हम दोनों तरीके से कंटेंट ऑफ ए बदल सकते हैं। चाहे ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 2, तो भी ए की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और स्टार पीटीआर की 2 होगी, क्योंकि दोनों जो है एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। ए भी सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है और स्टार पीटीआर भी सेम मेमोरी एड्रेस लोकेशन को रेफर कर रहा है। तो अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और स्टार पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो भी 2 आएगा। और ए की जगह अगर मैंने स्टार पीटीआर लिखा है यहाँ पे, तो हम इसको मॉडिफाई पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं, तब भी दोनों केसेस में एक ही एड्रेस लोकेशन मॉडिफाई होगा। उस एड्रेस लोकेशन पे अब वैल्यू कितनी है? 2, तो स्टार पीटीआर के थ्रू हमने उसके डेटा को मॉडिफाई कर दिया, तो ए जब देखेगा तो उसको भी मॉडिफाइड डेटा दिखाई देगा 2, और स्टार पीटीआर देखेगा तो उसको भी मॉडिफाइड डेटा दिखाई देगा 2। तो चाहे हम ए से वैल्यू को चेंज करें या स्टार पीटीआर से वैल्यू को चेंज करें तो वैल्यू इज अपडेटेड। तो ए से जब प्रिंट करेंगे तो भी वही सेम दिखाई देगा, स्टार पीटीआर से प्रिंट करेंगे तो भी सेम दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हमने स्टार पीटीआर प्लस प्लस किया तो ये स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट्स, पॉइंटर को 1 से बढ़ाना है, पॉइंटर के कंटेंट्स को 1 से बढ़ाना है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू पहले पॉइंटर को 1 से बढ़ाया, पहले पॉइंटर को 1 से बढ़ाया और फिर कंटेंट को प्रिंट किया। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको वर्क कर सकते हैं। चलो सेशन एंड करते हैं।